اور 13 سورہ ہے اس کو الرعد کہتے ہیں، جس کو انگلش میں the chapter of thunder بھی کہتے ہیں. اور chapter of thunder اس کی ورس 27 میں دیکھیں گے بڑی سچائی سے لکھا ہے، اور لکھا ہے جیسا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا. سورہ الرعد جو ہے سورہ 13 اس کی 27 میں آپ نے لکھا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہ ہوئی، یعنی کہ محمد پر نشانی نازل کیوں نہ ہوئی اللہ کی طرف سے. تو لکھا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے. سو اللہ پہلے گمراہ کرتا ہے پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 16 ہم جائیں گے اور اس کی 93 آیت میں دیکھیں گے. حالانکہ یہ جو اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فنی بات ہے کہ اس میں یہ جو سورہ النحل ہے یعنی کہ یہ مکی کی صورت ہے دبی اور اس کی 93 آیت. حالانکہ یہ اسکرین شاٹ ہے اس میں فنی بات ہے کہ آن لائن یہاں پر 94 آیت ہے. یہ لکھا ہے کہ اگر خدا یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو تم اس عمل کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ بعد میں سمجھاتا ہے. پھر میرے ساتھ دیکھیں سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے اس کی 7ویں آیت میں جائیں گے. سورۃ البقرہ ہے یہ دوسری سورت ہے اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے کانوں اور دلوں کو بند کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا انجسٹ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ان کی آنکھیں بند کر دی، ان پر پردہ لگایا، ان پر جو ہے وہ ان کو بند کر دیا، ان کے دلوں پر پردہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور بعد میں ان کو سزا بھی دے رہی ہیں. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ انسان جو کہ سزا پائے گا وہ تو کہے گا نہیں کہ آپ مجھے کیسے سزا دے سکتے ہیں، یہ آپ نے تو میری آنکھیں بند کی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا ہوگا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو 16واں نام ہے وہ ہے the subduer یا قہار، قہر کرنے والا. حالانکہ بائبل میں یہوہ کا ذکر آتا ہے کہ یہوہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ قہر نہیں کرتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس نے دنیا سے ایسی محبت کر لی یہوہ نے کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا یعنی یہوشوا، اور اللہ نے دنیا سے ایسی نفرت کی کہ اس نے قہر کیا، وہ قہار ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ نے ٹی جی باسٹرڈ کی گفتگو سن لی. اصل میں یہ کوئی بھی اعتراض کرتا ہے اس میں پکاتا بہت ہے، بڑی لمبی کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک بات کو اب اسی موضوع کو اس نے تقریباً 15 منٹ کا کر دیا. اب میں اس کا 15 منٹ کا ویڈیو ڈالنے سے رہا، اس لیے جو حوالہ جات دیتا ہے اور جو اس کا ایکسنس بتاتا ہے یعنی کہ جو اس کے بارے میں جو اعتراض کرتا ہے، اب جیسے اس نے یہ اعتراض کیا کہ پہلے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بعد میں اس کو ہدایت دیتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں جو اس نے حوالہ جات دیے ہیں. تو میں اس لیے جو اس کی ویڈیو کاٹ چھانٹ کے ڈالتا ہوں کیونکہ یہ لمبی بہت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لمبی کرتا ہے. اس لیے کوئی بھی چوڑا آپ کو کنفیوز نہ کر سکے کہ جی یہ جو اس کا اصل یعنی کہ جو بات کرنی ہوتی ہے، جو اس نے بیان کرنی ہوتی ہے وہ کاٹتا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے، بہت لمبی کرتا ہے، بے معنی محمل گفتگو اپنی والدہ ہی کی تعلیمات کو آگے لے جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جو اس نے حوالہ جات دیے اس کو میں اپنی ترتیب سے بیان کروں گا. اس میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. سورہ دوسری سورہ مبارکہ ہے اور آیت ہے اس کی 7ویں آیت ہے. مگر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چوڑا آپ کو قرآن پاک میں سے کنفیوز کرنے کی کوشش کرے تو آپ قطعی ایسا نہ کریں کہ بڑی بڑی تفسیروں کی طرف چلے جائیں کہ فلاں تفسیر میں دیکھو، فلاں تفسیر میں دیکھو، فلاں حاشیے میں دیکھو. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پچھلی آیت دیکھ لیں اور اس کی اگلی آیات دیکھ لیں، یعنی کہ آیتیں اس کی آگے پیچھے سے آیات دیکھ لیں. کبھی بھی چوڑا آپ کو یہ فن کی بات ہے، چوڑا ہو یا کوئی بد مذہب ہو وہ آپ کو کبھی بھی کنفیوز نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ صرف ایک آیت پکڑ کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں کہ اب قرآن پاک میں ایک آیت کا ایک جز ہے کہ نماز کے پاس مت جاؤ، نماز کے پاس مت جاؤ. اب آگے کوئی ہاتھ رکھ لے یا اگلا جز بیان نہ کرے، پوری آیت بیان نہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوگا
कि नमाज के पढ़ना ही जो है वो फर्ज नहीं है या नमाज ही नहीं पढ़ सकते। जबकि इससे आगे अगर हम पढ़ेंगे कि जबकि तुम नशे की हालत में हो, यानी कि अगर तुम नशे में हो तो फिर नमाज के पास मत जाओ। अब यही काम ये हरकत करते हैं, ये जितने भी चूड़े हैं जो एंटी इस्लाम वर्क करते हैं तो वो यही काम करते हैं। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी तक जितने भी मैंने बयानात किए, बाइबल के जितने भी पर्दे पढ़े हैं, मेरी कोशिश होती है मैं ज्यादा से ज्यादा आयात पढ़ दूं ताकि आगे पीछे से समझ आ जाए, कोई ये ना कह जाए कि मैं कांट छांट करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी कांट छांट नहीं करता क्योंकि बाइबल में कांट छांट की जरूरत ही नहीं है। उसमें इतनी गलाजत है कि कांट छांट को आप करने की जरूरत नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन लोगों को मेहनत करना पड़ती है धोखा देने में, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हकायक बयान करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम आते हैं दूसरी सूरह मुबारक और इसकी 7th आयत है। तो ये मैं 6ठी आयत से पढ़ रहा हूं। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल का हाल बयान किया है। किनके? कुफार के, काफरों के दिल का हाल बयान किया है कि वो ईमान लाने के नहीं है। ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहता कि वो ईमान ना लाए, ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहता कि वो निजात ना पाए, ईमान ना लाए। वजह यह है कि वो जिद में पड़े हुए हैं। जैसे आज के क्रिश्चियन है, आप इनको जितना मर्जी खोल खोल के बयान कर दें, यार इससे बड़ा बाइबल का और क्या तजाद होगा कि प्रोटेस्टेंट के पास 66 बुक्स हैं, यानी कि 66 पाराज हैं, और कैथोलिक के पास 72 पाराज बुक्स हैं। इससे बड़ा क्या तजाद होगा कि एक जिसको ये खुदा का कलाम कहते हैं उसमें ये 2 फिरकों ने 7 किताबों का फर्क डाला हुआ। और जो मैंने पिछले बयानात में 17, 18 और 26 यानी कि 17 का बयान किया, वैसे 26 किताबें ऐसी हैं जिनका कुरान बाइबल में जिक्र है मगर उनका वजूद नदारो। इससे बड़ा इनको क्या चाहिए कि उसके बावजूद जिद में पड़े हुए। तो अब आगे आते हैं 7वीं आयत। अल्लाह ने इनके दिलों पर और कानों पर मोहर कर दी और इनकी आंखों पर घटा टॉप है और इनके लिए बड़ा अजाब है, और इनके लिए बड़ा अजाब है। अब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों और कानों पर मोहर कर दी है तो इनकी करतूतों की वजह से, इनकी करतूतों की वजह से। किन के करतूतों की वजह से? क्रिश्चियनों के। क्रिश्चियनों से मुराद कुफार से। अब मैं जब लफ्ज क्रिश्चियन कहता हूं तो इसका मतलब होता है काफिर। यह मेरी इस्तिलाह है, काफिर की जो है वो उसका क्रिश्चियन मैंने कर दी है। इंग्लिश में हम काफिर को क्रिश्चियन कह सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, और वो ईमान वाले नहीं। यानी कि ये किनका जिक्र हो रहा है? ये मुनाफिकीन का जिक्र है, मुनाफिकीन का, यानी कि क्रिश्चियंस का। या आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे, बल्कि अगर पाकिस्तान में मिसाल दे रहा हूं, 50 लाख क्रिश्चियन रहते हैं तो इसमें 40 लाख ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल किया। जिंदगी में 40 लाख ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों से मफाद लिए, मुसलमानों से पैसा लिया। यानी कि जाहिर है एक बंदा इस्लाम कबूल करता है तो लोग उसकी तरफ अब बढ़ते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी इमदाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, मेरी तरफ 2-3 लोग मुतवज्जो हुए थे। मैंने उनको कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि मेरे पास सब कुछ है। और यह भी एक बड़ी मजे की बात है कि जब मैं कबूल इस्लाम के लिए सर्टिफिकेट लेने गया महकमा औकाफ से, तो वहां पर उन्होंने मुझसे 1000 रुपए की डिमांड कर ली थी। 1000 की यानी कि रिश्वत की डिमांड कर ली थी। मैं कई बार कहता हूं कि मैंने इस्लाम जो है वो खरीदा है, कितने? 1000 रुपए में। तो ये सिर्फ मैं तंज के तौर पर कहता हूं कि हमारे मुसलमानों में जो ये रिश्वत के मामला इतने बढ़ गए हैं, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुसलमानों से कोई यानी कि रुपए पैसे का लालच नहीं रखा। अगर रखा होता तो जितना मेरी शख्सियत थी, यानी कि जो ईसाइयत से निकला था, लोग जितने मेरी तरफ मुतवज्जो हुए थे, मैंने सबको एक ही बात कही थी कि यार उन लोगों को दो जो वाकई हकदार है, क्योंकि मेरे पास तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया सब कुछ है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, मैं कमा सकता हूं, सारा कुछ है। मैंने अपना दीन नहीं बेचा। तो ये इसी तरह जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन बसते हैं, यानी कि काफिर बसते हैं, अगर 50 लाख हैं तो इनकी 40 लाख तादाद ऐसी होगी जो जिंदगी में कहीं ना कहीं जिन्होंने कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट हासिल किया और बाद में किसी ने अच्छी नौकरी हासिल कर ली, बड़े हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं, और यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों में भी है, यहां तक कि मेरे रिलेशंस में है, रिश्तेदारों में है। अच्छी नौकरी हासिल की, कोई और मफाद हासिल किया और बाद में वही
चर्च की जो है वो वजह क्या है, ना उन्होंने इस्लाम को समझा ना कुछ और, सिर्फ अपना लालच किया और मुनाफिक बने रहे। तो अब मजीद इसको पढ़ते, फरेब दिया चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को और उन्हें शाउर नहीं। यह मैंने यानी कि दूसरी सूरह मुबारका की आयत 6 से 9 आयत तक पढ़ा है, और इससे क्लियर हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ये नहीं करता कि पहले गुमराह करे उसके बाद वो निजात दे या उसको संवार दे, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुमराह या उन्हीं पर मोहर लगाता है जो क्रिश्चियन है, जो इस हालत में है कि जो जिद में पड़े हुए हैं, बेगैरती में पड़े हुए हैं। अब इसको हम देखते हैं सूरह नहल में, यानी कि 16वीं सूरह मुबारका है, और आयत है इसकी 93, इसने 94 कहा है मगर है 93। और असल में ये जो है ना, ये बेगैरती का मुजाहरा कर रहा है कि ये कुरान पाक के वो यानी कि स्क्रीनशॉट दिखा रहा है जो कादियानी यूज करते हैं। कादियानी 2 आयत को 1 आयत लिखते हैं, 2 आयत को 1 आयत लिखते हैं, इसलिए आयत में उनके फर्क पड़ता है। 2 आयत को कादियानी जो है, कादियानी कुरान पाक का जब तर्जमा करते हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं, कादियानी मुसलमान नहीं है। अहमदी, कादियानी, मरज़ई ये कतई तौर पर मुसलमान नहीं है, चाहे जो मर्जी करते रहे। वजह क्या है, इन्होंने तौहीद में गड़बड़ नहीं की, इन्होंने रसालत में गड़बड़ की है। ये लोग कहते हैं ना कि मुसलमान जो है वो मुशरक है, तो मुसलमान तो तौहीद में तो जो गड़बड़ करे वो तो सीधे ही मुशरक है ना। वो हम तो रसालत में जो गड़बड़ करे, यानी कि रसालत को अगर डबल मान ले तो हम तो उसे नहीं अपने दीन में रहने देते। तो ये कोई हम पर इल्जाम लगाए कि जी हम तौहीद में गड़बड़ करते हैं, यानी कि जैसे वो सैमी सैमसन वगैरह बकवास करता रहता है और दूसरे तीसरे ये भी करते रहते हैं कि जी मुसलमान जो है वो मुशरक हैं, शिरक करते हैं। तो जो हम तौहीद में यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को दूसरा अल्लाह नहीं मानते, मैं अक्सर अपनी वीडियोस के साथ लगाता रहता हूँ ये अपना सैमी सैमसन की और इसकी, कि ये शैतान को खुदा मानते हैं। तो हम जो रसूल को यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, काफिर है, कतई काफिर। तो अहमदी जो है या मरज़ई है, कादियानी है, ये काफिर है। अब इनसे हम कुरान पाक तो छीन नहीं सकते, कुरान पाक ये हमारा ही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये आयत को 2 आयतें हैं उनको 1 बनाते हैं, इसलिए 1 आयत का फर्क पड़ता है। तो ये कोई बड़ा फर्क नहीं है, 7 किताब यानी कि बड़ा फर्क नहीं है। क्यों, इन्होंने वो निकाली नहीं है, वो आयतें मुबारका निकाली नहीं है, उसी आयत को इन्होंने 2 आयतों को जोड़ के 1 कर दिया है, सिर्फ इसलिए फर्क पड़ता है। और ये जानबूझ के ये बेगैरती कर रहा है, जबकि कुरान पाक मैं भी आपके सामने जो स्क्रीनशॉट करता हूं तो ये बिल्कुल क्लियर है। ये दावत इस्लामी वालों का सॉफ्टवेयर है, ये बड़ा इजी है। इसमें यह है कि एक लफ्ज लिखें तो वो पूरा उसका जो बायोडेटा निकल आता है, इसलिए मुझे ये बहुत आसान लगता है। मेरा दावत इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मैं दावत इस्लामी वाला नहीं हूँ। सब्जी मामा पहना हुआ और सब्जी कुर्ता पहना हुआ, इसका मतलब मैं दावत इस्लामी वाला नहीं हूँ। ये दावत इस्लामी वालों ने रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ, ये मेरा अपना यानी कि शौक है। अब देखते हैं सूरह नहल 16वीं सूरह मुबारका और आयत है इसकी 93। और अल्लाह का अहद पूरा करो जब कौल बांधो, और कस्में मजबूत करके ना तोड़ो, और तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामन कर चुके हो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। और उस औरत की तरह ना हो जिसने अपना सूत मजबूती के बाद रेजा रेजा करके तोड़ दिया। अपनी कस्में आपस में एक बेअसल बहाना बनाते हो, कहीं एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा ना हो। अल्लाह तो इससे तुम्हें आजमाता है, और जरूर तुम पर साफ कर जाहिर कर देगा क्यामत के दिन जिस बात में झगड़ते थे। और अल्लाह चाहता तो यानी कि अल्लाह चाहता तो तुमको एक ही उम्मत करता, लेकिन अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे। अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और राह देता है जिसे चाहे। और जरूर तुमसे तुम्हारे काम पूछे जाएंगे, तुम्हारे काम पूछे जाएंगे। इससे क्या मुराद है कि अल्लाह जो है जिसे चाहे गुमराह करता है। इसने आपने पिछली आयत जो मैंने पीछे से पढ़ रहा हूं 91 से, ये असल में लोगों का अपना रुझान होता है। क्या होता है? रुझान होता है, लोगों के अपने करतूत होते हैं, लोगों के यानी कि अवाम जिनको ये गुमराही का या दूसरे मामलात होते हैं, वो होते हैं कि वो उनके अपने ही मामलात होते हैं, जिसकी वजह से अब वो जिद में पड़ जाते हैं। तो बाजू का अब मिसाल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह
हर मोहल्ले में पाकिस्तान में है या दुनिया में कहीं भी मुसलमान बसते हैं, जहां पे भी मुसलमानों की थोड़ी सी तादाद होती है, वो अपनी मस्जिद बना लेते हैं। क्या करते हैं? मस्जिद बना लेते हैं। और मस्जिद में क्या होता है? 5 टाइम अजान होती है, 5 औकात अजान होती है। अजान होती है, इसका मतलब है अल्लाह अकबर, बुलावा मिल रहा, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह, हय्या अल सलाह, बुलाया जा रहा है। अब कितने परसेंट जो मुसलमान है, कुफार की बात नहीं हो रही, मुसलमानों की बात हो रही, कितने परसेंट मुसलमान हैं जो मस्जिद में जा रहे हैं? आप बात समझे? अब वहां पे बुलावा तो आ गया, अब किसी को आके किसी ने, यानी कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या किसी और शख्सियत ने, किसी और जात ने आके रोका तो नहीं कि वो मस्जिद में जा रहा है, उसको किसी ने आके मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ा है या मस्जिद के रास्ते में खड़ा है, वो उसको रोके, ऐसा नहीं है। मगर क्या है कि लोग अपने तौर पर ही नहीं जाते। इसका मतलब है लोग खुद बुराई की तरफ आते हैं, हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह की तरफ नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना कर दिया, नहीं, उन्होंने खुद अपना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को क्या पैदा किया है? आजाद पैदा किया है, आजाद पैदा किया है। ये नहीं है कि उसको कोई ऐसा पत्थर पैदा किया है या जमादात पैदा किया है या हैवान पैदा किया। इंसान को आजाद मर्जी दे के पैदा किया है, क्योंकि अगर आजाद मर्जी ना देता तो फिर उसका क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होता ही नहीं। अब इंसान को अगर आजाद मर्जी दी गई है तो इसका मतलब है कि हिसाब किताब है। अगर आजाद मर्जी ना हो, यानी कि इंसान अपने अच्छे भले का, अच्छे का और बुरे का जिम्मेदार खुद ना हो, तो इसका मतलब है कि फिर क़यामत वाले दिन जो हिसाब किताब है या जन्नत दोज़ख का मामला है, ये सिर्फ सारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि इंसान को आजाद मर्जी दी गई है। अब वो क्या करता है? अच्छाई की तरफ आता है या बुराई की तरफ आता है। हाँ, एक चीज होती है कि जब वो बुराई की तरफ जाए और वो ज्यादा बुराई ही में घुसता जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान कि मैं उसको गुमराह कर देता हूं या उसके दिल पर मोहर लगा देता हूं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपनी बुराई में पुख्ता हो चुका, अब इसका वापसी की उम्मीद नहीं है। और फिर मजीद हम आगे चलते हैं। सूरह रद यानी कि 13वीं सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 25, यानी कि 25वीं आयत है। और वो जो अल्लाह का अहद इसके पक्के होने के बाद तोड़ते और जिसके जोड़ने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया उसे कता करते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनका हिस्सा लानत ही है और इनका नसीबा बुरा घर। अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा और तंग करता है, और काफिर दुनिया की जिंदगी पर इतरा गए, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबिल नहीं मगर कुछ दिन बरत लेना। और काफिर कहते हैं, यानी कि ये आयत है, यानी कि 13वीं सूरह की ये 27वीं आयत है जो इसने कोड की है। मैं पीछे से आगे से जो मैंने शुरू में कहा कि आप ये कुलिया याद रखें कि जब भी कोई क्रिश्चियन काफिर जो है आपके सामने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे कुरान पाक की किसी आयत से, तो सिर्फ ये काम करना कोई जरूरत नहीं है आपको अपना बड़ी बड़ी वो तफासिर देखने की। कुरान पाक की अगली और उसी आयत की अगली और पिछली आयत देख ले, आपको समझ आ जाएगी कि ये कंफ्यूज कैसे कर रहा है। और काफिर कहते हैं कि इन पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से क्यों ना उतरी। तुम फरमाओ, बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और अपनी राह से देता है, राह उसे देता है और अपनी राह उसे देता है जो उसकी तरफ रज्जू लाए। यानी कि अल्लाह किसको गुमराह करता है? जो बुराई की तरफ खुद जाता है, ये नहीं कि वो नेकी की तरफ आ रहा है और अल्लाह पाक उसे नाउजुबिल्लाह उसे मना कर रहा है। ये बाइबल में यही कुछ है कि जो नेकी की तरफ आ रहा है और बाइबल का खुदा या यहावा और यावा पागल है ना, क्या करता है? जो नेकी की तरफ आएंगे वो उनको बुराई की तरफ धकेलेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम बाइबल की तरफ आएंगे, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। यहां पर हम जो इसी आयत को देखते हैं, और अपनी राह से देता है जो उसकी तरफ रजू लाए, वो जो ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। यह कतई नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले गुमराह करे फिर उनको हिदायत दे, ऐसा कतई ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कतई गुमराह नहीं करता। ये जो कहना है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुमराह किया, वो यही है कि जो गुमराही की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे क्या करेगा? ढील दे देगा।
क्या करेगा? ढील दे देगा, उसको पकड़ेगा नहीं, ढील दे देगा, जाओ भाई जाओ। वो गुमराही में घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, आखिर क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। और जो अच्छाई की तरफ आना चाहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए क्या करेगा? रास्ते खुले कर देगा। क्या करेगा? रास्ते खोल देगा, रास्ते खोल देगा, उसके दिल को, उसके दिमाग को अपनी तरफ माइल कर लेगा। यह कतई नहीं है कि जो आना चाहे उसको धक्के दिए जाए और उसको बाद में, ये बिल्कुल बकवास है। आपने ये सुन लिया, आज मैंने भी आपको पका दिया, मादरत खाऊं तो मैंने भी आपको आज थोड़ा सा पका दिया। हालांकि मैं इतनी वो तफसीर या तशरीह नहीं करता, बस आज कोई शायद वो इसके बयानात सुन सुनकर मुझे भी आदत पड़ गई है। दुआ करें मुझे ऐसी आदत ना पड़े कि आप मेरे हाथों पके। तो अब आते हैं बाइबल की तरफ, यानी कि गलाजत की तरफ। गलाजत में जो गुमराह करने वाला मामला क्या है, इसको हम देखेंगे। इस्तिस्ना बाब 29 और इसकी आयत 1, 2, 3, 4। इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसकी ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरैब में बांधा था। सो मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्क मिस्र में फरआउन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया, देखा है। इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े कृष्ण तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। यह है बाइबल के खुदा का स्टैंडर्ड, यानी कि यहोवा का स्टैंडर्ड, कि जो जिनको वो वहां से निकाल लाया, कहां से? मिस्र से निकाल लाया। जाहिर है अब उन्होंने माना, यहोवा को खुदा माना, यहोवा को, हालांकि उनको पता नहीं था कि ये यहोवा जो है यहोवा है, पागल है। तो उनको उसको क्या माना? खुदा माना। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें, अब उनको ले आया, बियाबान में धक्के दिला रहा है, जलील कर रहा है, और फिर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें दिल ही नहीं दिए, वो समझने वाले दिल और आंखें ही नहीं दी, वो दिमाग ही नहीं दिए। ये किसका काम है? ये यहोवा का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी खुदा, हकीकी परवरदिगार का कतई नहीं है। फिर हम मजीद आगे चलते हैं। यसाया बाब 6 आयत 8 और इसकी आयत 8 और इसकी हम देखेंगे 11 आयत तक। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे, तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखें बंद कर दे, ताना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शिफा पाएं। तब मैंने कहा, आए खुदा, ये कब तक? उसने जवाब दिया, जब तक बस्तियां वीरान ना हो और कोई बसने वाला ना रहे और घर बेचिराग ना हो और जमीन सरासर उजाड़ ना हो। ये इस बयान में इसने, यानी कि ये जो एतराज किया इसमें ये भी इसने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हार है, जबकि यहोवा जो है वो क्या कहते हैं, बड़ा रहम दिल है, हलीम है, वो बसाना चाहता है, ये करना। ये बाइबल इसका मुंह चढ़ा रही है, बाइबल इसको जूते मार रही है। मैं इसको क्या कहूंगा? जस्ट जैसे डर्टी पिक करता था, यानी कि क्रिश्चियन सुअर पिक, आप समझ गए होंगे, सैमी सैमसन की बात कर रहा हूं। इसी तरह ये बास्टर्ड कर रहा है, बाइबल ही इनके मुंह पर जूते मार रही है। मैं इनको क्या कहूं? ये जो बकवास करते हैं तो बाइबल ही इनके मुंह पर जूते मारती है। मैं इनको क्या कहूं? अब आगे चलते हैं मत्ती बाब 13 में। मत्ती बाब 13 और इसकी 10 आयत से शुरू करते हैं, 10 से 14 आयत। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में यसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, जो मैं पहले पढ़ चुका हूं यसाया के मामलात में। तो अब ये देखें, ये है स्टैंडर्ड। अल्लाह रब्बुल इज्जत का स्टैंडर्ड क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किनको गुमराह करता है? वही जो गुमराही की दौड़ दौड़ते हैं, गुमराही की दौड़ दौड़ते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्रीचरों से, यानी कि मुबल्लिगीन के कहने पर वो वापस
फलाह की तरफ नहीं आते, रोशनी की तरफ नहीं आते, नूर की तरफ नहीं आते। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, ये नहीं कि उनको गुमराह कर देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी कि लफ्ज गुमराह ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको क्या करता है, ढील देता है, ढील देता है, यानी कि ढील देता है, उनकी रस्सियां आजाद कर देता है, जाओ गुमराही में भागो। अब वो गुमराही में भागते हैं। मैंने पहले भी अर्ज की कि इंसान को आजाद पैदा किया गया, आजाद मर्जी दी गई है, इसीलिए इससे हिसाब किताब है। जानवर को आजाद मर्जी नहीं दी गई, पत्थर को आजाद मर्जी नहीं दी गई, इसलिए उसमें से उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो अब यहां पर यह देखें, और बाइबल की जो आयात मैंने आपके सामने जो पढ़ी है, बाइबल के अंधेरे आपके सामने रखे, उसमें वो लोग अब जो मिस्र से निकल आए इस बनी इसराइली, उनके बारे में भी कह दिया कि इनके दिलों को मैंने जो है वो, इनको वो दिल ही नहीं दिया, इनकी वो आंखें नहीं दी जो समझ पाए, जो समझ सकें। फिर उसके बाद यसाया ने भी कहा, यसाया वाले में आपने देख लिया जो मैंने हवाला दिया, कि इनके दिलों को चरबा दे, किस यहां तक कि मैं शहरों को वीरान कर दूं, इनको उजाड़ दूं। फिर क्या है ये, आप देखें कि ये जो बकवास करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, वो बाइबल से साबित हो रही है, बाइबल के यहोवा यावे पर साबित हो रही है। कहां से साबित हो रही है, बाइबल के यहोवा पर। अब मैं क्या इनको, आप कहते हो गाली देते हो, भाई मैं गाली फिर क्यों ना दूं, मैं गाली ना भी दूं तो बाइबल ही इनको गालियां देती है। इनको क्या कहती है, सरासर झूठे हैं ये। अब जो फिर यसू की यहोशुआ की आपने गुफ्तगू सुन ली, वो कहता है वो लोग उसके पास अपना कामकाज छोड़ के आए हुए हैं, सारा कुछ छोड़ के आए हुए हैं कि भैया आप हमें तालीम दो, हमें हदायत दो, हमें निजात दो। तो वो क्या कह रहा है कि इनको निजात नहीं दी गई, इनको वो कान ही नहीं दिए गए जो सब सुन सके, इनको वो अकल ही नहीं दी गई, जो दिल ही नहीं दिए गए जो समझ सके। अब जो लोग सारा कुछ छोड़ छाड़ के आगे, ये फिर भी कोई निजात ना देना चाहे, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि वो ये काम जो करता है वो कौन है, अबलीस। इसका मतलब क्या हुआ, वाज़े हुआ कि यहोवा जो है वो क्या है, अबलीस है। माजरत खा हूं, आज मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, 25-26 मिनट का ये बयान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। और दूसरा ग्रंथियों 4 बाब में लिखा है कि जो शख्स ये नहीं मानता कि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की बातों को नहीं मानता, उसकी रोशनी तक नहीं पहुंचा, उसको यानी कि वो बेईमान है, और उसको उसकी अकल को, उसके जहन को, उसके दिल को, उसकी आंखों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और इस जहान का खुदा कौन है, ये इब्लीस है, ये शैतान है।